In chapter 6, we have studied the properties of the substances which are in pure form. And we have written fundamental thermodynamic equations for a closed kind of system where the composition variation is not there. Now here in this chapter, we are trying to write our relations for variable composition and mixtures. So the component is present among the presence of other component. That's why there is a partial property. When any component is present in the presence of other component, then the property of 1 mole of substance will be called partial property. So if we take this property as a Gibbs energy, so this will be called partial molar Gibbs energy. If we take volume, it is partial molar volume. If we take enthalpy, it is partial molar enthalpy, and so on. So in case of Gibbs energy, this partial property is called chemical potential. So let us continue with that. So a very general kind of relation we have here, a very general kind of relation. So let us begin with this. This one. Look at this equations relating molar and partial molar properties. Okay. So we had any property. Please mute your microphone. Someone is keeping it on. So there is this Arvind Nishad. You are on the way, I think. Arvind Nishad. He is moving. I think he is on the way. So I will remove him. He is not listening and moving. So if you see a very general kind of relation, the property of solution, property of mixture, and having n number of moles. These n number of moles are made of number of components n1 plus n2 plus n3 like that. So n is equal to sigma ni here. Look at this. And this property is of 1 mole of the solution. So if you multiply, so this is total property. So it is a function of temperature, pressure, and number of moles of the components. Then if you carry out total differentiation, you can write easily from the mathematics dnm. So this is property dnm. So partial property with respect to P means pressure, change in pressure, keeping other things constant. Similarly, with respect to temperature, keeping other things constant, T and N, here T and N. So this you can write from the mathematics. And sigma Nm over Ni, keeping temperature, pressure, and composition of. So this we have discussed last time also. So if you look at this is a partial molar property. Change in total property divided by change in number of moles, keeping other things constant, it is partial. So this we have written. Okay, so this is a from mathematics. Now if you write this one, you can write dnm equal to, so this way. So just that partial property has been written.
Now, because these things were constant here, n and n, so we have taken it out. So n is outside here, n is outside. So equation 10.9 follows from equation 10 above equation very easily. Now, what we are going to do now, we will differentiate this one d and m, and we will also write d and I, taking considerations of the variables. So if we write d and I, it is ni is xi into n. You know, number of moles of any component is equal to mole fraction of that component into total mole. Ni is equal to xi into n. Xi is the mole fraction of that particular component I. And if you differentiate it, so it becomes dni. So dni, if you differentiate it, it is xi dn plus n dxi. Okay, so this one is being differentiated. Similarly, we will differentiate this also. Here, dnm is equal to dm plus mdn, because both things are variable. So these two things are to be incorporated in this equation 10.9. We are writing in a very general form. It's very easy, straightforward. It's from mathematics. So just write d and m. So d and m has been written here, and ndm plus mdn, and this is as such. And here sigma m mi, and this d and I has been substituted here. Just substitute in equation 10.9 the expressions for d and I and d and m. D and m here and d and I. We have substituted. So, and we get this one. Now what we will do, we'll collect similar terms. So a coefficient of n has been taken. So if you take n common, you can collect. See, n dnm, here it is n. Here also n is multiplied with this, n is multiplied this, and here n is multiplied. So if you collect all those terms, coefficient of n. So here you can write this one. You take your 1 minute and you can yourself collect this one. So keep n separate and dn separate. Again, in a similar way, take dn common. So means separate in two parts. All the multiplier of n and all the multiplier of dn. So collect separately. So n and dn. So here two terms can be obtained. Can you do it? Take 1 minute and do it yourself in your, take your notebook and do it. I can ask anyone to show the notebook if you are doing it without. So you don't just listen, you have to work out. Take 1 minute and show me. If I ask someone and if he has not, he or she has not done, I will remove. You have to work out. From this equation, just try to find out this one. Very straightforward. Take your time. Take 1 minute. Chitrans and Rajat Verma have left the meeting. I don't know why. I will not admit them again.
I hope you have done it. Chitrans Sir, Gautam, please yes, tell sir. me, have you done it? Chitrans Gautam, please tell me. Yes, sir. Can you show me your textbook Yes, sir. and notebook? Please show me. Yes, sir. Yes, sir. So you have collected these terms. Right now you have done it. Have you collected the coefficient of n and the coefficient of dn? Both you have collected just now. लास्ट दिखाइए हमको अभी जो आपने किया. 1 मिनट हमने समय दिया ना आपको करने के लिए. आपने कलेक्ट किए वो टर्म्स. ये जो दिख रहा है टेक्स्ट बुक में आपको, इस तरीके से आप कलेक्ट कर पाए, बस मैं ये जानना चाहता हूँ. क्या मुश्किल. राजन कुमार, आप दिखाइए. राजन कुमार. राजन कुमार. दिखाइए आपने किधर किया, राजन कुमार. आवाज नहीं आ रही राजन कुमार. राजन कुमार. I have removed Rajan Kumar. Not responding. संतोष रैदास. Yes, yes, sir. दिखाइए नोटबुक में आपने कहाँ कलेक्ट किया, एन और डीएन के टर्म्स कलेक्ट किए. सर कर रहे हैं अभी. विद इन 30 सेकेंड आप दिखाइए. इतना समय नहीं लगता है ना उसमें, तो सीधा सीधा है. सभी टर्म्स हैं आपको कलेक्ट करने. लिखिए तो आप नोटबुक लेकर के, लिखते क्यों नहीं आप. सर लिख रहे थे. राशि, कैन यू शो मी. Yes, sir. राजन अभी हम लौटेंगे, अभी आप दिखाएंगे हमको. संतोष, संतोष. राशि दिखाइए जी सर. कैसे हुआ. हैव यू कलेक्टेड. राशि प्रेजेंट. आप प्रेजेंट करिए. Yes, स्टार्ट sir. प्रेजेंट. 1 minute. तो ये एन और डीएन दोनों टर्म्स आप अलग अलग करके आपने कलेक्ट किए. Yes, sir.
मनीषा मौर्य आपने किए? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी से दिखाइए हमको। पिन किया हमने। तो आपको ऐसे वर्कआउट करना है, ठीक है। हम हमको तो बहुत आसानी है, बुक है हमारे सामने, हम पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उससे काम बनेगा नहीं। आपको समझना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम मेंशन कर रहे हैं। बार बार आप ये ये दिखाइए ठीक से। मनीषा मौर्य, शो मी योर आंसर बुक, टेक्स्ट वो दिखाइए, नोटबुक अपनी आपने कलेक्ट की है। तो आपको ये वर्कआउट करना है। तो अभी अनुज तिवारी, आर यू डूइंग इट? Yes, sir. Yes, sir. मनीषा मौर्य, आपका अभी फोकस नहीं आया ठीक से। संतोष, दिखाइए कितना किया आपने। अभी तक डन नहीं हुआ, तो आगे बढ़ते हैं इसी को। तो अब आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट। अब इसमें देखिए एन और डी एन दो अलग अलग टर्म ले लिए गए हैं। तो एन के साथ ये जितना भी ये मल्टीप्लायर है, ये और ये, अब इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। देखिए एन और डी एन दोनों आर्बिट्रेरी और 3 वैल्यूज है। हम लोग कुछ भी साइज का सिस्टम ले सकते हैं, जिसका मतलब है एन माने एनी नंबर ऑफ मोल्स वी कैन कंसीडर, और उसमें जो भी वेरिएशन करना चाहें कर सकते हैं। तो एन और डी एन दोनों आर्बिट्रेरी और इंडिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। और अब आप देखिए कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद एन एंड देन समथिंग मल्टीप्लाइड विद डी एन बिकम्स जीरो। तो अगर एन और डी एन जीरो नहीं हो सकते हैं, एन अपने आप जीरो नहीं है, डी एन अपने आप जीरो नहीं है, माने यू कैन चूज एनी वैल्यू, इट इज नॉट नेसेसरली जीरो। और इनके कोफिशिएंट के साथ जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई इज जीरो, एंड इफ एक्स एंड वाई बोथ आर इंडिपेंडेंट एंड आर्बिट्रेरी, तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी बोथ सेपरेटली मस्ट बी जीरो। ये मैथमेटिक्स से लॉजिक निकाला कि अगर एन और डी एन दोनों आर्बिट्रेरी और इंडिपेंडेंट हैं, और ए और उसके साथ ये मल्टीप्लाइड है, और फिर डी एन के साथ ये मल्टीप्लाइड है, इन दोनों को मिल करके माने ए एक्स प्लस बी इंटू वाई टाइप का कुछ बन रहा है, ये इक्वल टू जीरो बन रहा है। तो ए भी जीरो होगा, ये ए है पूरा ये ब्रैकेट में, और ये बी, ये भी जीरो होगा, अलग अलग जीरो होंगे, ये जरूरी बात है। तो इसको लिखा गया है यहाँ पर। तो इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड टर्म एन के मल्टीप्लायर को आपने जीरो कर दिया, तो वो देखिए लिखा गया है डी एम इक्वल टू दिस 10.10। चेक करिए। और इसी तरह इसके डी एन के मल्टीप्लायर को लिखा गया है जीरो, तो ये हो गया एम इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एम आई बार। इसको जीरो कर दीजिए तो ये आ गया। तो इक्वेशन 10.10 और 10.11 ये दोनों आ जाती हैं। देखिए ये 10.10 कोई अलग इक्वेशन नहीं है। हम लोग अगर शुरू वाली जो इक्वेशन है उसमें n इक्वल टू 1 रख दें तो ये बन जाता है। देखिए ये यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर अगर n इक्वल टू 1 रख दें तो ये बन जाता है। तो डी एम इक्वल टू डेवर एम ओवर डेवर पी, कीपिंग टेम्परेचर एंड कंपोजिशन कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट, और ये n इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो वहां पर डी एन आई की जगह हो जाएगा डी एक्स आई। बस इतना अंतर है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है
और हमने ये जो टोटल डेरिवेटिव लिखा है यहाँ पर, इसमें ये बात तो ट्रू है, अगर n इक्वल टू 1 रख दीजिए आप इसमें, तो हमको वो इक्वेशन 10.10 मिल जाता है। माने टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 ले लिए जाए तो ये जो n1 n2 n3 है ये कुछ भी नहीं है, ये x1 x2 x3 बन जाते हैं। So these number of moles of the components become the mole fraction of the component. तो ये डायरेक्ट हम लोग मैथमेटिक्स से लिख सकते हैं, वही उसमें लिखा गया है 10.10 में। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन और भी हिडन है जो अभी अब लिखेंगे हम लोग, जिसे मिक्सिंग रूल कहते हैं। ये है मिक्सिंग रूल। तो ये वाली इक्वेशन तो n इक्वल टू 1 रखने से आ रही है, मगर ये वाली इक्वेशन अलग से आई है जो हमने अभी वर्कआउट किया है। तो इसमें जो टोटल प्रॉपर्टी है एक मोल सोल्यूशन की, वो है सिग्मा xi mi बार और समेशन ओवर ऑल आइज, माने सभी एलिमेंट्स के लिए। माने आप मोल फ्रैक्शन टाइम्स मोलर प्रॉपर्टी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करिए तो ये टोटल प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये कंपोनेंट है, उस जो मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी के लिए वो है mi बार, और कितना है वो उसका अमाउंट वो xi है, तो xi मल्टीप्लाई विद mi, तो ये हो गया टोटल प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूशन बाय दैट कंपोनेंट, और उन सब को जोड़ दीजिए तो आपको टोटल प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये है समेशन रूल, है मिक्सिंग रूल है एक तरीके का। तो आप जब प्योर कंपोनेंट की बात करते हैं तो जहाँ पर हम लोग पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की बात नहीं करते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो किसी भी कंपोनेंट की जो प्योर प्रॉपर्टी है और उसको मिक्सचर में अगर ले जाएंगे तो भी उसकी एक मोल की प्रॉपर्टी सेम रहे, तो उस केस में mi बार नहीं होता है, उस वक्त होता है m इक्वल टू सिग्मा xi इंटू mi, जिसे मिक्सिंग रूल, सिंपल मिक्सिंग रूल बोलते हैं। जैसे कि आप मॉलिक्यूलर वेट में लिखते हैं, अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एयर, तो एयर का जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है एक मोल एयर का, आप लिख देते हैं सिग्मा xi इंटू mi, उसमें बार नहीं होता है। लेकिन अब हम चूंकि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं और हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग ये मानेंगे कि जो एक मोल की प्रॉपर्टी है कंपोनेंट की प्योर स्टेट में, वो डिफर करती है एक मोल की प्रॉपर्टी व्हेन द कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो जब प्रेजेंट इन मिक्सचर की बात करेंगे तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी की बात करें, तो ये आपको याद रख सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसे समेशन रूल बोलते हैं, समेबिलिटी रिलेशन, नोन एज इट इज नोन एज समेबिलिटी रिलेशन। तो ये आपने एक कंक्लूजन निकाला। अब इसको देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसको अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप nm इक्वल टू सिग्मा ni mi बार, ये भी आप कर सकते हैं टोटल प्रॉपर्टी। तो ये एक मोल का है, ये टोटल प्रॉपर्टी का, तो ये समेबिलिटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने चैप्टर 6 में अगर आप देखिए तो आपको स्यूडो क्रिटिकल प्रॉपर्टीज की जब बात करी गई थी, और उसमें उस वक्त जो है आप कर सकते हैं। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिक्सचर की प्रॉपर्टी जो है वो सम ऑफ कंपोनेंट प्रॉपर्टीज ली जाती है, वेटेड बाय देयर कंट्रीब्यूशन, मींस वो उनका अमाउंट कितना मौजूद है मिक्सचर के अंदर, उससे आपको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब आप देखिए हम लोग इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। तो वन फर्दर इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम दीज इक्वेशंस की dm इक्वल टू, देखिए तो अब जो है dm इक्वल टू हम लोगों ने सिग्मा xi dmi बार, और ये तो अगर आप ये देखिए हम लोगों ने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये m इक्वल टू सिग्मा xi mi बार। तो 10.11 में अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, देखिए ये dm है और ये m है, मैंने m का डिफरेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन m का डिफरेंशियल देखिए ये आया हुआ है, लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स से m का डिफरेंशियल लिखें तो dm इक्वल टू होना चाहिए xi dmi बार प्लस mi dxi। देखिए वो लिखा गया dm इक्वल टू, देखिए लिखा गया है, देखिए सिग्मा xi dmi बार प्लस सिग्मा mi dxi, इसको हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा बना रहेगा, तो m को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dm लिखिए, तो ये हो गया, देखिए यू कैन डिफ्रेंशिएट इट सिग्मा xi dmi बार सिग्मा mi dxi बार, इट इज सिंपली बाय डिफरेंशियल कैलकुलस। तो देखिए एक dm का ये रिलेशन भी नया रिलेशन मिल गया।
तो इक्वेशन 10.10 को हम लोग एक गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन के नाम से लिख सकते हैं। माने कि अगर आप इक्वेशन 10.10 लिखें यहाँ पर, ये देखिए 10.10, तो यहाँ पर आप इसको आप सिग्मा एम आई डी एक्स आई को आपने यहाँ से अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए ये इक्वेट कर दीजिए, माने इन दोनों को dm इक्वल टू दिस वन एंड dm इक्वल टू दिस वन, इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर दें तो आपको मिल जाता है, ये कहलाता है गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। dm ओवर dp कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कंपोजिशन इनटू dp प्लस डेवर m ओवर डेवर t इनटू dt सिग्मा xi dmi इक्वल टू 0। एक बार आप करके देखिए, टेक योर टाइम, 1 मिनट का समय लीजिए और इसको, तो दोनों dm को बराबर कर दिया हमने। तो ये देखिए, तो ये सिग्मा xi dmi बार यहाँ पर और सिग्मा mi dxi ये देखिए, तो सिग्मा, ये देखिए यहाँ पर दोनों को, तो सिग्मा mi dxi ये जो है कैंसिल आउट हो जाता है। तो दोनों को आप इक्वेट कर दें तो आपको ये मिल जाता है। तो ये कहलाता है गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप, ये यूज होगा बाइनरी मिक्सचर में, माने दो कंपोनेंट से जो बन करके मिक्सचर तैयार होते हैं, उस केस में आपको इसको यूज करना आना चाहिए। तो ये गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन, यहाँ पर क्या है कि देखिए आप कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, इस जगह कांस्टेंट, अगर आप केवल कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कर दें तो प्रेशर कांस्टेंट, तो ये खत्म हो जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर ये खत्म हो जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर यू हैव सिंपली सिग्मा xi dmi बार इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर के लिए और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर बार इक्वल टू 0, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। 10.13 and 10.14 both these equations follow from the Gibbs Duhem equation। तो यहां तक आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, माने आप एक जनरल रिलेशन ले करके, कोई भी जनरल प्रॉपर्टी ले करके गिब्स ड्यूहेम इक्वेशन निकालने तक प्रैक्टिस कर लीजिए। ये कहता है कि इक्वेशन 10.14 shows that the partial molar properties cannot all vary independently. This constraint is analogous to the constraint on mole fractions, which are not all independent because they must sum to 1। जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट नहीं होते, एक का मोल फ्रैक्शन बदलेंगे आप तो दूसरे का भी बदल जाएगा, क्योंकि सम टोटल 1 होना चाहिए। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस शुड बी 1। सिमिलरली यहाँ भी ये कहता है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो बदलेगी, अगर आप एक को बदलेंगे तो दूसरी भी बदलेगी, माने ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई सोल्यूशन है, उसका आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, प्रेशर कांस्टेंट रखिए, उसका कंपोजिशन वेरी कराइए, तो कंपोजिशन वेरी कराने पर ये रूल जो है फॉलो होना चाहिए। ओके, सो the mole fraction weighted sum of the partial molar properties must yield the overall solution property, equation 10.11, and this constrains the variation in partial molar properties with composition। so 10.1, okay, तो ये रिलेशनशिप लागू रहेगा। ये टोटल प्रॉपर्टी की बात हो रही है और यहाँ पर वेरिएशन की बात हो रही है, तो ये रिलेशंस आप ध्यान रखिए। आगे ये डिस्कस कर रहा है इसी बात को कि ये जो रेशनले है वो क्या है फॉर पार्शियल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग एम आई बार को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ये क्या है, लिमिटिंग केस है ये, जब कंपोजिशंस जो हैं, अगर कोई कंपोनेंट एक्स आई लिमिट करे, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, आप देख पा रहे हैं थोड़ा बड़ा हुआ है या स्क्रीन को मुझे बड़ा करना पड़ेगा? स्क्रीन को बड़ा करके दिखाता हूँ।
देखिए ये एक लिमिटिंग केस की बात कर रहा है कि इस जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है उसको हम लोग प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट कर सकते हैं जबकि कंपोजिशन 1 की तरफ जाए। तो देखिए लिमिटिंग केस है ये, एक्स आई टेंड्स टू 1 माने कंपोजिशन 1 की तरफ जाए, माने कि प्योर कंपोनेंट है और कोई केवल आई ही कंपोनेंट उसमें मौजूद है सोल्यूशन में, कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि जब एक्स आई 1 की तरफ जाएगा कि मतलब कि दूसरे कंपोनेंट नहीं है, तो उस केस में जो ये प्रॉपर्टी है वो जो है वो प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी। देखिए लिमिट एक्स आई टेंड्स टू 1 m इज इक्वल टू लिमिट एक्स आई टेंड्स टू 1 एम आई बार, माने उसके पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के बराबर ही होती है और जो कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये एम आई रिप्रेजेंट्स द प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी। तो ये लिमिटिंग केस। तो यहां पर 3 तरीके के सिंबल आपको ध्यान रखने चाहिए। m मीन्स द सोल्यूशन प्रॉपर्टी, mi बार मीन्स पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i, एंड mi रिप्रेजेंट्स द प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट i। ये प्योर स्टेट में है कोई कंपोनेंट, ये सोल्यूशन स्टेट में है, और ये जो है हम सोल्यूशन की बात करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से कंपोनेंट की ही प्रॉपर्टी से मिलना है और उसका वही पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी भी है जो इसकी प्योर कंपोनेंट, मानी ऑल दीज थिंग्स आर आइडेंटिकल व्हेन द कंपोजिशन इज सच दैट इट इज ऑलमोस्ट मेड ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। ठीक है, तो ये इसको समझाया गया, समझने में आसान है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। एक दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि जब कंपोनेंट आई, इसको मैं बड़ा करके दिखाऊं, component I it is almost 0, so limiting case in which xi tends to 0, तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी उसकी क्या होगी, यानी उस कंपोनेंट i की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी क्या होगी। तो उस प्रॉपर्टी का विशेष नाम दिया गया है और ये एक स्पेशल इंटरेस्ट की बात है कि हम लोगों को कई बार कंपोनेंट की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी मालूम करनी होती है जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो जब कंपोनेंट i ऑलमोस्ट नील है उस केस में जो उसकी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है वो एक डेफिनेट वैल्यू होती है जिसका नाम दिया गया है एम आई बार इंफिनिटी। तो ये कहलाती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट आई एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब यहाँ पर एक समरी प्रेजेंट कर दी गई है। क्या डेफिनेशन दी गई, पहले तो एमआई की आप जानते हैं, ये डेफिनेशन आपको अब याद हो गई होगी। इसके बाद एक समेबिलिटी रिलेशन की बात करी गई कि प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपोनेंट सॉल्यूशन विल बी सम ऑफ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज वेटेड बाय देयर मोल फ्रैक्शन। और गिब्स डीहम इक्वेशन जो आपने अभी लिखा वो ये है, सिग्मा एक्स आई डी माई बार इक्वल टू। अब बाइनरी सोल्यूशन के लिए इन्हीं जो अभी हमने रिजल्ट्स निकाले हैं इन्हीं को बाइनरी सोल्यूशन के लिए आप लिख सकते हैं। तो जैसे बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि व्हेन द सोल्यूशन इज मेड ऑफ 2 कंपोनेंट 1 and 2, तो उस केस में देखिए m प्रॉपर्टी ऑफ 1 मोल ऑफ द सोल्यूशन इज सिग्मा एक्स आई एम आई बार, तो वही लिखा गया। देखो सिग्मा हटा दिया तो x1 m1 बार प्लस x2 m2 बार, ये लिख सकते हैं आप, समेबिलिटी रिलेशन लिखा गया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dm इक्वल टू x1 dm1 प्लस m1 dx1 प्लस x2 dm2 प्लस m2b। तो ये आप डिफरेंशियल कर सकते हैं अपने आप, अपनी नोटबुक में डिफरेंशियल कर लिए। ठीक है, और m जो है ये एक फंक्शन है कंपोजिशन का, x1 एट देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लेंगे अगर आप, तो ये फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ओनली, तो उसमें गिब्स डीएम इक्वेशन लिखा जा सकता है। तो ये देखिए सिग्मा एक्स आई डी एम आई बार इक्वल टू 0 ये लिखा गया, तो इस सिग्मा को तो यहाँ पर गिब्स डीएम इक्वेशन लिख दिया गया, ये सिग्मा एक्स आई डी एम आई बार, ये गिब्स डीएम। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हो तो ये 0 हो जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गिब्स डीएम इक्वेशन ये है
सिग्मा आई आर, अगर आप कांस्टेंट और प्रेशर रखें तो ये दोनों टर्म जीरो हो, तो वही लिखा गया है यहाँ पर, एक्स लेकर के लिखना चाहते हैं। तो इस केस में x1 प्लस x2 1 है, तो अगर dx1 लिखेंगे तो इट इज इक्वल टू माइनस dx2। सो x1 प्लस x2 इज 1, डिफरेंशियल करेंगे तो dx1 इक्वल टू माइनस dx2। तो आप जो है इसको dx1 के टर्म में इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं। तो dx1 ये जरा आप करके वर्कआउट करिए, dm ओवर dx1 इक्वल टू m1 बार माइनस m2 बार, आप लिख सकते हैं या नहीं? dx2 को एलिमिनेट कर दीजिए, तो इक्वेशन बी से यहां से देखिए, ये dx1 है, dx1 को हम लोगों ने लिख दिया है, dx2 को लिख दिया माइनस dx1, यहाँ पर ये जो dx2 है इसको माइनस dx1 लिख दीजिए। तो इस इक्वेशन से, इक्वेशन बी से आप इक्वेशन डी इसको आप ऑब्टेन करने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम, 1 मिनट आप लीजिए और आप सब्सटीट्यूट करिए dx2 इक्वल टू माइनस dx1, और आप ये लेके आइए dm ओवर डी। तो इसी इक्वेशन से, इक्वेशन बी से आपको ये मिलना चाहिए। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर बाइनरी मिक्सचर, चेंज ऑफ मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन per unit change in the composition of component 1 is difference between the partial molar properties of two components. So dm over dx1 is equal to m1 bar minus m2 bar. ये रिलेशन इंपॉर्टेंट आपको मिलना चाहिए। ये आपने किया होगा। अब जो है हम लोग देखिए, ये इक्वेशन ए जो है यहाँ पर दिख रहा है उसको लिख सकते हैं m इक्वल टू, अब देखिए m1 बार माइनस x2 m1। तो अब यहाँ पर जो है, तो अगर आप ये देखें कि हम यहाँ पर रख दें x1 और x2 को, आप जानते हैं कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1। सो अगर आप ये रख दें, सब्सटीट्यूट कर दें, तो यू शुड गेट दिस वन, m इक्वल टू m1 बार माइनस x2 m1 मिलना चाहिए आपको। तो ये कहता है कि टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ए रिजल्ट फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ सेपरेटली x1 एंड x2। तो ये x2 के टर्म में है और ये x1 के टर्म में है। तो m इक्वल टू ये आप लिखिए अभी अपने आप नोटबुक में, अपना वर्कआउट करिए थोड़ा सा कि इक्वेशन ए से आप इसको कैसे प्राप्त करेंगे। इक्वेशन ए m इक्वल टू x1 m1 बार प्लस x2 m2 बार। तो इसमें आप जानते हैं x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 रख दीजिए, मिल जाएगा आपको। और अगर आप इसको x1 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो x2 इक्वल टू 1 माइनस x1 लिख दीजिए, ये दोनों मिल जाएंगे आपको, ठीक, आसानी से मिल जाएगा। तो उन सबको आप अगर कंबाइन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि m1 बार कैन बी रिटन एज x2 dm over dx1, और सिमिलरली m2 बार कैन बी रिटन एज m माइनस x dm over dx1। तो ये इक्वेशन 10.15 और 10.16 आप डिराइव करने की कोशिश करिए। दे आर सिंपल। हाँ, और इसी को डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा जा सकता है, इक्वेशन ई और एफ। तो इक्वेशन सी, द गिब्स डियम इक्वेशन में बी रिटन इन डेरिवेटिव फॉर्म। तो इक्वेशन सी जो ये लिखा गया था, ये गिब्स डियम इक्वेशन है, सी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया गया है यहाँ पर, ये x1 dm1 बार ओवर dx1, dm बार ओवर dx1 कर दे तो आपको मिल जाता है। तो प्लस x2 यहाँ पर dm बार ओवर dx। इक्वेशन E एंड इक्वेशन F बोथ कैन बी रिटन, है ना। इससे E से F मिल जाएगा आपको। तो ये बाइनरी मिक्सचर के लिए जरूरी इक्वेशन है जो आपको जरूरत पड़ने पड़ती है। तो इसका ये क्या शो करता है, देखिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी
if you change the composition of component। तो ये जरूरत पड़ती है आपको। तो कई बार आप जो है टोटल प्रॉपर्टी से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी निकालने का काम करते हैं, या कभी कभी रिवर्स करते हैं, आप टोटल प्रॉपर्टी से पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी निकालते हैं, या फिर आप पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से टोटल प्रॉपर्टी निकालते हैं। तो इसमें ये रिलेशंस है टोटल प्रॉपर्टी और पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के बीच, ये जो रिलेशंस हैं कंपोनेंट 1 के लिए या कंपोनेंट 2 के लिए, तो ये, लेकिन ये सभी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर लिखे गए हैं। देखिए केवल कंपोजिशन का वेरिएशन दिख रहा है आपको, टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन नहीं है। हेलो सर। ठीक है, हाँ बताइए। सर ये बाइनरी मिक्सर्स क्या होते हैं सर, इसका यूज क्या बाइनरी होता मिक्सर है? का मतलब है टू कंपोनेंट मिक्सचर। द मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली टू, जैसे वाटर एंड अल्कोहल, बेंजीन एंड टॉलुइन, एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। माने जो दो कोई कंपोनेंट ले लीजिए आप, बेंजीन और टॉलुइन, दो सॉल्यूशंस हैं, उनको दो लिक्विड्स हैं, उन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो वो बाइनरी मिक्सचर बोला जाएगा। एनी मिक्सचर विच इज composed of two kinds of species is called binary mixture। binary माने आप जानते हैं binary means composed of two। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, यस सर। बाइनोमियल थ्योरम, composed of two, binary means composed of two। तो बाइनरी मिक्सचर का एनालाइज करना आसान है। अगर 3 मिक्सचर हो जाएंगे तो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के रिलेशंस डिफिकल्ट हो जाएंगे लिखने। वैसे तो इन रियलिटी देयर आर नंबर ऑफ मल्टी माने कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर, लेकिन हम लोगों के लिए सिंपलेस्ट एनालिसिस जो है 2 कंपोनेंट को लेकर के ही की जा सकती है, क्योंकि उसके लिए जो इक्वेशंस है मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपल है। अगर आप 3 कंपोनेंट ले लीजिए तो देखिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है इक्वेशन और समेबिलिटी रिलेशंस एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल केस लेकर के करेंगे जिसमें 2 कंपोनेंट की बात करेंगे। ओके सर, जो ई इक्वेशन है सर, ई इक्वेशन में जो इक्वल टू 0 हो जा रहा है वो क्यों 0 हो रहा है वो? इक्वेशन ई, दिस वन। यस सर। सो इक्वेशन सी से आया है ये। देखिए इक्वेशन सी में आप देख रहे हैं ना x1 dm सी 0 इसलिए हो रहा है। ये देखिए गिब्स डीहम इक्वेशन है ये 10.13। यस सर ठीक। तो इसमें आप कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर का केस रखिए तो dp 0 dt, ये राइट हैंड साइड टर्म 0 हो गया पूरा। सो सिग्मा एक्स आई dmi बार बिकम्स इक्वल टू 0। और इसको तोड़ दीजिए आप, सिग्मा को हटा दीजिए तो x1 dm1 बार प्लस x2 dm2 बार इक्वल टू 0। वही लिखा गया है, देखिए यहाँ x1 dm1 बार प्लस x2 dm2 बार इक्वल टू 0। ठीक, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है इसलिए ऐसा है। यस ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो ये इक्वेशन आप ई और एफ तक जरा डेराइव करने की कोशिश करिए अपने आप। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है और आप देखेंगे कि इसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये जो लिमिटिंग वैल्यूज हैं इनको भी हम लोग ग्राफिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसी का एक एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व किया गया है 10.2। डिस्क्राइब ए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशंस 10.15 एंड 10.1। तो इसमें बाइनरी मिक्सचर लेकर के इसको सॉल्व किया है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कंपोनेंट x1 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू 0 दो केस लिए गए हैं और उसमें I1 और I2 जो है ये प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो ये प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी माने x1 इक्वल टू 1 हो जाए तो ये प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो ये जो ग्राफ देखिए दिखाई दे रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। माने अगर हम किसी भी मिक्सचर की प्रॉपर्टी को कंपोजिशन वेरिएशन के साथ प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट मिलता है हमको, ये प्लॉट मिलता है। ये देखिए ये जो डार्क लाइन दिख रही है आपको, ये डार्क लाइन ये आपका प्लॉट है। सो इट इज ए वेरिएशन ऑफ ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर ये मोलर प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर शो कर रहा है और
एक्स एक्सिस पर कंपोजिशन शो कर रहा है। तो यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक, माने 0 मीन्स बाइनरी मिक्सचर की बात हो रही है कि अगर x1 इक्वल टू 0 होगा तो जो भी प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी होगी वो कंपोनेंट 2 की होगी। इसलिए x1 इक्वल टू 0 पर जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है मिक्सचर की वो ये देखिए, ये यहाँ पर दिस वन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कुछ भी नहीं है, ये M2 बार है। देखिए ये इस तरफ दिखाया है। दूसरा बी डायग्राम देखिए, इसमें एक साथ नहीं दिखाया है इन्होंने, अलग अलग दिखाया है। x1 इक्वल टू 0 पर जो सोल्यूशन प्रॉपर्टी है वो है M2। मीन्स M2 क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? M2 मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2, प्योर कंपोनेंट। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के सिंबल हैं। एक तो है ये M1 और M2 मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। दूसरा अगर आप बार लगा दीजिए तो पार्शियल प्रॉपर्टी बन जाता है, और अगर कुछ भी नहीं है केवल M लिखें तो वो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। सब्सक्रिप्ट अगर 1 और 2 नहीं है और M लिखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो आपको सिंपल सी इसमें इंटरप्रिटेशन दी गई है ग्राफिकली। तो x1 इक्वल टू 0 यहाँ पर देखिए, तो वो जो प्रॉपर्टी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है y एक्सिस पर वो होनी चाहिए कंपोनेंट 2 की प्योर प्रॉपर्टी। तो M2 है वो यही है, ये वाली, ये यहाँ पर करेस्पॉन्ड कर। और अगर कंपोनेंट x1 इक्वल टू 1 हो जाए तो आप राइट हैंड चले आइए, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो प्योर कंपोनेंट 1 की होनी चाहिए। तो ये जो डार्क लाइन हमने कहा कि सोल्यूशन की प्रॉपर्टी बन जाएगी प्योर कंपोनेंट प्रॉपर्टी। तो देखिए M1 हो गया, ठीक है। तो x1 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू 0 पर ये जो सोल्यूशन प्रॉपर्टी है वो M1 और M2 कैसे बनी ये आपको समझा दिया। ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो केवल इतनी बात कही मैंने, लेकिन आप जनरल बात करें कि 0 से लेकर के 1 तक वेरिएशन हो सकता है x1 में। माने अगर आप 0 से इधर 0.5 चले आइए, सपोज करिए ये 0.5 है, तो इसका मतलब इसमें कंपोनेंट 1 50% है, कंपोनेंट 2 भी 50% है, क्योंकि x1 इज इक्वल टू 0.5 एंड x2 इज आल्सो 0.5। तो दोनों कंपोनेंट की मौजूदगी में है ये बात। तो अब जो है सोल्यूशन प्रॉपर्टी कहलाएगी ये, यहाँ पर देखिए, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो M है। तो 1 मोल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। तो ये जो हमेशा जो है आप कभी भी प्लॉट करिए तो सोल्यूशन प्रॉपर्टी एक कर्व के फॉर्म में होती है, ठीक है। ये एक कर्व दिखाई देता है सोल्यूशन प्रॉपर्टी, यहाँ पर ऐसे यही सोल्यूशन प्रॉपर्टी। और इस सोल्यूशन प्रॉपर्टी पर अगर आप किसी कंपोजिशन पर टेंजेंट खींच दीजिए, तो ये देखिए टेंजेंट खींचा गया है। तो टेंजेंट खींचने का मतलब ये है कि अगर आप उस टेंजेंट को देखिए, ऊपर आपने मैथमेटिकली इसको क्या कहा है, टेंजेंट खींचने का मतलब है कि dm ओवर dx1 आप निकालना चाहते हैं, dm ओवर dx1 ओवर x1। ठीक है, इसको आपने इंटरप्रेट किया है ग्राफिकली, dm ओवर dx1 ये टेंजेंट है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी पर। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट होती है ये जब आप इस एक्सिस पर लेते हैं तो ये कहलाती है I1 प्रॉपर्टी। I1 प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कंपोनेंट जो आपका 1 है जिस वक्त ये, तो I1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करा जा सकता है। यहाँ पर आप यहाँ देखिए, आप इसको दीज आर प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर कही गई है, दीज आर गिवन स्पेशल नेम कहाँ पर हमने दिखाया था, ये देखिए, ये प्रॉपर्टी x1 टेंडिंग्स टू 0 becomes मार्शल मोलर प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये इसी तरीके का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो ये प्रॉपर्टी I1 कही गई, और इसका जो अगर टेंजेंट आप इधर देखें इस वाले एक्सिस पर कहाँ पर टच करता है तो इसको I2 बोला गया। तो यहाँ पर आपको निकल के आएगा इसका इंटरप्रिटेशन, I1 इज नथिंग बट M1 बार। आप देखेंगे I1 इज M1 बार एंड I2 इज M2 बार। माने I1 ये जो है वो है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अगर आप कोई कंपोनेंट 50-50% कंपोजिशन की बात करें तो उसमें आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 1, तो आप टेंजेंट खींच दीजिए
और टेंजेंट खींच करके आप यहाँ टच कराइए कि ये कहाँ पर है। तो ये जो I1 की जो वैल्यू है वही उसका M1 बार है, माने दिस I1 इज इक्वल टू M1 बार, माने पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 1। सिमिलरली पार्शियल मोलर, और यहाँ पर I2 बार जो है आपको बताएगा पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट 2। ये ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये बहुत जरूरी है ये समझना यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर ये टेंजेंट खींची गई है, टेंजेंट M2 पर खींची गई है, तो M2 पर खींची गई, इसका मतलब ये जो है अब आप ये लेकर गए तो ये M1 बार इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंपोनेंट 1 की पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेगा। और अगर आप इसके ये x1 इक्वल टू 0 पर जब आप खींच रहे हैं तो मिलेगी M1 इन्फिनिटी बार इन्फिनिटी। और अगर आप x1 इक्वल टू 1 पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट खींचा गया, तो इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट 1 पूरा है, माने कंपोनेंट 2 ऑलमोस्ट 0 है, वो इनफाइनाइट रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट 2 के लिए हो गया। तो ये कंपोनेंट 2 का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है। तो ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इसको बताया गया। तो कभी भी आपको ग्राफिकली आपको आंसर करना हो तो आप टेंजेंट खींच करके पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। और अगर आपको पूछे कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है, तो वो आप जो है 0 और 1 पर टेंजेंट खींच दीजिए। तो जब आप 0 पर खींचेंगे तो आपको कंपोनेंट 2 की रिस्पेक्ट में ये आपको माने आपने इसको माने जब x1 इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आप करेंगे तो आपको मिलेगा कंपोनेंट 1 की इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्रॉपर्टी। और जब आप x1 इक्वल टू 1 पर करेंगे तो आपको कंपोनेंट 2 के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मिल जाएगा। ये तो ये आप ग्राफिकली भी आप इसको, तो आपको मालूम क्या होना चाहिए, कंपोनेंट कंपोजिशन पता होना चाहिए, x और पार्शियल मोलर डाइल्यूशन प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो आपको इंडिविजुअल जो कंपोनेंट के पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज आप निकाल सकते हैं। तो इसी को ग्राफिकली इन्होंने इंटरप्रेट किया है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए आपको। इसके बाद देखिए 10.3 में भी इसी तरीके का एग्जांपल लेकर के इन्होंने सॉल्व किया है और इसमें वॉल्यूम की बात की है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। इसमें देखिए वॉल्यूम को इन्होंने लिखा है वॉल्यूम इक्वल टू सिग्मा, ये देखिए समेबिलिटी रिलेशंस, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज सिग्मा xi vi बार। तो ये सब गिवन है प्रॉपर्टी, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। मेथेनॉल और वाटर बाइनरी मिक्सचर लिया गया है। V1 का मतलब है कि कंपोनेंट 1 माने मेथेनॉल जब प्योर है उसका वॉल्यूम, और वाटर 2 कंपोनेंट उसका प्योर, तो प्योर कंपोनेंट के वॉल्यूम दिए हैं, पार्शियल मोलर वॉल्यूम भी दिए हैं। तो आपको कहता है टोटल मिक्सचर प्रॉपर्टी, माने टोटल मिक्सचर, यहाँ पर वॉल्यूम इज द प्रॉपर्टी। तो 1 मोल सोल्यूशन का वॉल्यूम निकालिए, आप ये देखिए निकाल लिया गया। तो इस एग्जांपल को भी कर डालिए। फिर इसके बाद एक एंथैल्पी का एग्जांपल गिवन है। एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ कंपोजिशंस। तो ये फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है, बस आपको मैथमेटिकली इसको निकालना है। तो फिर वही काम किया गया है। तो इसमें देखिए एंथैल्पी ऑफ बाइनरी मिक्सचर इज गिवन, डिटरमाइन एक्सप्रेशंस फॉर पार्शियल मोलर एंथैल्पी। तो वो आप निकाल सकते हैं। अभी आपने जो पार्शियल मोलर एंथैल्पी की बात करी है उसके रिलेशन में वही बाइनरी मिक्सचर के एक्सप्रेशंस आप यूज कर सकते हैं। एच इज गिवन, DH ओवर DX1 आप निकाल लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। पिछले जो रिलेशंस हैं उन्हीं को यूज करके। तो ये 3 एग्जांपल आप सॉल्व करिए। बस इतना आज आपके लिए इतना बहुत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पर क्लोज करता हूँ।